year on year, again and again to make profits. Their benefits expire within a year. Assets का benefits last for more than a year. Expenses का benefits expire within a year. What are incomes? Incomes are the amounts which you earn year on year, again and again, and help you to make profits of that year. Incomes are the amounts that you earn year on year, again and again. आप घड़ी घड़ी कमाते हो, कमानी of the business. You earn again and again, year on year, and they help you to add to profits. Is it clear? The expenses are the costs incurred year on year to make profits. Incomes are the amounts which you earn year on year, again and again from your core business. That is called income, which adds up to your profits. Okay? And profit is nothing but incomes minus expenses. Profit is nothing but incomes minus expense. मुझे सोच के बताओ, इसमें मैंने आपको क्या बताया? Expenses are what? Costs are incurred every year to make profits. Incomes, the money which you earn every year, again year on year recurring basis, which adds up to your profit. Profit is the result of income minus expenses. So think and tell me, in my business, what do you see as expenses? Very good. Apt example, electricity bill or markers, stationery. Very good. Rent, absolutely right. If my place is on rent, I am paying it every year. 100% correct. Rent is an expense. Or सर आपके पास कोई अगर इंटर्न कर रहा हो, वेरी गुड. मेरे पास अगर कोई इंटर्न कर रहा हो, अभी वो काम इंटर्न नहीं है, काम वाली बाई आती है, साफ सफाई करके जाती है, या फिर कोई स्टाफ रखा हो, कोई सुपरवाइजर रखा हो, उसकी सैलरी, दैट्स माय एक्सपेंस. वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट. हर साल देना पड़ेगा. और मार्कर, पेन, स्टेशनरी और नोट्स का, स्टेशनरी का खर्चा, मैं आपको जो नोट्स देता हूँ हर साल देना पड़ेगा. दैट्स ऑल्सो एन एक्सपेंस. परफेक्ट बोल रहे हो एकदम. और जो लोग रिपेयर करने आते हैं, मेंटेन करने आते हैं, एयर कंडीशनर रिपेयर करवाना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी का कुछ खर्चा हो गया, रिपेयर मेंटेनेंस, दैट्स माय एक्सपेंस, हर साल करना पड़ता है. और इंटरनेट चार्जेस, वाईफाई चार्जेस, दे आर ऑल्सो माय एक्सपेंस. परफेक्ट. अगर आपको हर साल पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट का अगर मैं खर्चा करता हूँ तो माय बिजनेस डजंट डू एडवर्टाइजमेंट, इज जीरो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट. बट अगर मैं करता हूं, सो दैट इज ऑल्सो एन एक्सपेंस. 100% राइट. एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, बैनर्स अगर लगाता हूं, पैम्पलेट्स अगर बेचता हूं, दैट इज ऑल्सो एन एक्सपेंस. ओके, परफेक्ट जा रहे हो. व्हाट आर माय इनकम्स? And that is the only income from class. Core income is fees. Okay. This is, हर एक बिजनेस में ना एक core income होती है, ancillary. So this is the core income. There might be some ancillary incomes, like maybe interest. If I invest my money, I get some interest. If I invest, I get dividends. That is my additional income. Okay. अगर मैंने कोई जगह रेंट पे दी और मुझे रेंट भी आ रहा है, तो that's an additional income. But core income is fees. What are the main expenses of Jethalal's business? Electricity expense, rent. जेठालाल ने भी शॉप रेंट पे लिया है. सैलरी देता है नटू का बागा को, दैट्स हिज एक्सपेंस. मेंटेनेंस करवाता होगा शॉप का, वो भी उसका एक्सपेंस. सबसे बड़ा एक्सपेंस क्या है उसका? कोर बिजनेस, बाइंग एंड सेलिंग. So that is called as purchases and sales. So what is the biggest खर्चा for Jethalal? You know, buying of goods. वो हर साल करता है. That's his biggest expense. So for a trading business, mine is not a trading business. I'm into a service business. For a trading business, the core expense is always purchases, goods, purchases जो खरीदते हैं. And what is the core income? Sales. The core income of any business is sales. The core income for any trading business is sale of goods. Sale of goods. सबसे बड़ा पैसा उसको हर साल कहाँ से आता है? Sale of goods. सबसे बड़ा खर्चा किस पे होता है? Purchases. Purchases are the biggest expense. Sales are the biggest income. और भी खर्चे हैं जेठालाल को लगे पड़े, जैसे आपको सैलरी समझा,
रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, वाईफाई, इंटरनेट चार्जेस, मेंटेनेंस, रिपेयर्स. किसी ने बोला था डेप्रीसिएशन. व्हाट इज डेप्रीसिएशन? यू नो, वैल्यू ऑफ द एसेट्स डिक्रीज. वो भी खर्चा है, वो भी उसको लगा पड़ा है. इंटरेस्ट ऑफ लोन, वेरी गुड. इंटरेस्ट ऑफ लोन हमने देखा था ना, लोन पे इंटरेस्ट, दैट इज ऑल्सो एन एक्सपेंस. ओके. इनकम में कोर इनकम क्या है? इसके अलावा एंसिलरी इनकम हो सकती है, जैसे अगर उसने किसी को भाड़े पे दिया है, समझो कोई कोई दुकान वाले पता है आगे का एरिया पानीपुरी वाले को दे देते हैं, डाबेली वाले को दे देते हैं, तो उससे वो लोग क्या लेते हैं? रेंट. फूड स्पॉट वाले ने दिया हुआ है तो उसको क्या मिलता है? रेंट. दैट्स इज एंसिलरी इनकम. और इंटरेस्ट, डिविडेंड अगर इन्वेस्ट किया तो वो भी मिल सकता है. दे आर कॉल्ड एंसिलरी इनकम्स. ओके. व्हाट आर द कोर इनकम्स फॉर अचीजा होटल? अचीजा होटल का इनकम क्या है? फूड बिल्स. फूड बिल, खाना खा के जाते हैं, वो पैसा मेन इनकम है. और कुछ हो सकता है होटल का, तो वेटर को मिलता है ना. पे एंड पार्क करते हो, पे एंड पार्क करते हैं तो पार्किंग फीस उसका इनकम हो जाता है. और फ्रेंचाइजी अगर उसने दिया है तो उसका फीस, दैट इज ऑल्सो इज इनकम. रॉयल्टी हर साल उसको लेता रहेगा, शेयर बराबर है. एब्सोल्युटली राइट. ऑनलाइन सेल्स होते हैं, उसका पैसा जोमेटो स्विगी से जो भी सेल्स हो रहे हैं उसका इनकम. होटल का इनकम वही फूड इनकम ही है मेन. ओके. उसके अलावा रेंट इनकम हो सकता है, कुछ उसने दिया हुआ है सबलेट करके. उसके अलावा ये होता है अपना पार्टी ऑर्डर्स वगैरह लेते हैं, तो पार्टी बल्क ऑर्डर्स के जो भी वापस अगेन फूड के ही है मोस्टली. ओके. एक्सपेंसेस इलेक्ट्रिसिटी, बहुत लंगर है, दिमाग लगाओ. सैलरीज, स्विगी जोमेटो की फीस, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी ऑफ राइटर्स, रॉ मटेरियल ऑफ फूड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेंस. रेंट. व्हाट इज फर्नीचर? वाई लास्ट में हो जाए ना. सो ये चीज याद रखना. एक्सपेंसेस की लाइफ एक साल से, एक्सपेंसेस की कम, एसेट्स की एक साल से ज्यादा. फर्नीचर इज एसेट, बट रिपेयर, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, दैट्स एन एक्सपेंस. और कुछ क्लीनिंग, स्वीपिंग, झाड़ू पोछा, साफ सफाई, सैलरी, वो सब. और what about those utensils and washing machine and refrigerator which are there in the kitchen? can be assets. They are assets. They are not expenses. They are your assets. So expenses better है दिमाग में. What are assets of Achija? Furniture, utensils, If he owns it, microwaves, if he owns ovens, the place. owns the place, then property, furniture, chandeliers, AC. बराबर है. All these are his assets. What are his liabilities? कैपिटल ही होगा. अगर उसने लोन लिया तो लोन, अगर खाने का माल उधार पे लिया तो क्रेडिटर. जा रहा है दिमाग में, पिक्चर क्लियर हो रहा है चीजा का. ऐसे आप हर एक बिजनेस का, कोई भी बिजनेस रास्ते में दिख रहा है, आराम से 2 मिनट रुक के उसका चारों आइटम्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. व्हाट आर दोस 4 आइटम्स? एक्सपेंस, इनकम, एसेट्स एंड लायबिलिटीज. ओके. तो ट्राई दैट टिल थर्सडे. ऑन थर्सडे विल डिस्कस दीज 4 आइटम्स इन डिटेल आगे और भी. ओके. कुछ ना समझ में आए, डाउट्स हो, कॉल या व्हाट्सएप मी. इतना रिवाइज करके आना. वी आर मीटिंग ऑन थर्सडे का टाइम में मैसेज करता हूँ. टाटा बाय बाय, सी यू.